Today's session is okay. Today's session is covering three main topics. First, introduction to HRM, which is include its factual aspects, nature, scope, and objectives. Second topic is SLH HRM mechanism, which include recruitment, training, and performance reporting. Third topic is containing three main topics. First, organizational structure, SLH version 26.2, and second, policy and program, Indian labor law, which is the latest version, and second is internship program 2026 legal executive, and the third main is Sunday Saga, which is a slideshow presentation. It is called HRM activities. Before we proceed, I would like to express my gratitude to all the management and coordinators for the organizing this valuable training session. Now, without further delay, let's begin our session. Now, I invite CEO to present to address this session. Over to you, sir. You're not audible. You mute. Okay. Thank you. The person who lead the dais will be visible, and rest of the participant will keep themselves in a video pause mode. Okay, just to maintain the sanctity and discipline all across the platform. Okay. So right now, uh, our CTO kindly give the basic updates to our support officer. शनि शनि आप अपने वीडियो वाले उस पे स्क्रीन को टच करिए और वीडियो जहां दिख रहा है उसको ऐसे छू देंगे तो वीडियो आपका पाज हो जाएगा, ठीक है। और माइक को म्यूट कर दीजिएगा ताकि पीछे कोई आवाज करे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। जब हाँ अभी माइक आप बंद है, माइक वाले को फिर से छूइए, स्क्रीन को छूइए तो माइक दिखेगा। हाँ आवाज अभी नहीं आ रही, माइक को छूइए, माइक को छुएंगे तो माइक पे ऐसे रेड कट के जो आ रहा है सही हो जाएगा। देखिए नीचे, हाँ बोलिए। हाँ नहीं करे, वीडियो हम ऑफ कर दे रहे हैं तो फिर मतलब हाँ तो वीडियो ऑफ रखिएगा, माइक को भी म्यूट कर दीजिएगा, जब बोलना होगा तो माइक को अनम्यूट करके बोलना है। मगर ये सब चीजें हम लोग अपने ट्रेनिंग अपने मीटिंग सेशन से पहले ही करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोड में जाता है तो बेसिक चीजें थोड़ा सा डिसिप्लिन को खराब करेंगी, ठीक है। तो इस पे हाँ वीडियो को बस वीडियो को छूइएगा, वीडियो आपका म्यूट हो जाएगा, ठीक। हाँ ओके, वेरी गुड। तो राइट नाउ we are going to start our training sessions, and first of all I would like to give you warm welcome and thank you with the active and voluntary collaboration of all our team members. Currently we are enjoying enough number of participation on the platform. It's a good sign of progress. And yes, one thing we would keep in mind that these are a small and tiny efforts, what we say, the small effort, small effort, smart effort, and consistency of the process. Definitely these three elements will constitute and give us a kind of compounding effect. So for this, all of you are deserve to be given a big clap and heads up to you. Okay. So right now I'm going to share the screen, and in the meantime, this database shall be uploaded, shall be recorded, and the same shall be uploaded through the YouTube channel so that other incumbent could see the standard operating procedure of your law firm and get themselves benefited from our efforts. So right now I am going to share my screen, and today's work allocation are from topic first and second, all segments, first and second, including the third 3.2. I will give my presentation, and on the point of 3.3, our chief public officer, chief people officer, that is equal to CHRO, chief human resource
officer shall give his presentation. And okay, so I'm going to start my part of duty. I'm going to discharge my part of duty. Hmm. Our CTO kindly assist me whether my screen is in share mode or not. No, sir. Your screen is not visible. Is Okay, it still yes, right now, yes, right now you are visible. okay? What is it is said? Okay. Well, again, I'm trying to uh, share Again, the screen. yes, your screen is visible now. Okay. So mm, once again, just am I audible? Our CTO, am I audible? You are audible. Okay. Is my screen visible to all of to you, Mr. Yes, sir. CTO? Okay. Yes, sir. Clearly. Okay. As you know that today's topic for our training session are as such. So on the point of 1.1, I have a brief summary to share with you. So far, actually, you can see that this is it is our letter number 21. That means कि hardly we have two more training session for current financial year. So under the topic 1.1, I that is titled as factual aspect. I have prepared my notes, which includes all relevant part of those sessions, what we say, those part which are relevant to the human resource management. In a brief, under the topic subtopic of factual aspects, I am giving my presentation of the short notes. लाइक जैसे इसका टॉपिक आज हमारा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हमने इससे पहले भी जो सेशन किए हैं उसमें ये कहीं न कहीं उसमें रिफ्लेक्टेड था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिपोर्ट नंबर्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो रिपोर्ट 01 जो था, यानी जो एक ट्रेनिंग सेशन था जो 13/4/25 को हुआ, उसमें आप पाएंगे कि उसमें डिजिटाइज कैटलॉग की बात की गई थी। वो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड था। अभी हम इसके नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे। बस एक फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा हम ब्रीफ दे रहे हैं जो हमने पहले के सेशंस में किए हैं। तो जैसे आप पाएंगे कि हम इसमें डेट बताएंगे अपने ट्रेनिंग सेशंस का। आप सभी के पास करंट फाइनेंशियल ईयर का कैलेंडर होगा, उसमें लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि उसमें डेट्स मेंशन होंगे। तो आप पाएंगे कि 13 अप्रैल को जो हमने ट्रेनिंग सेशंस किया था तो उसमें हमारा डिजिटल कैटलॉग का एक पॉइंट था, वो हमारे एचआरएम का पार्ट था। वैसे ही जो हमारे मई का जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें कॉस्ट मैनेजमेंट एक एंगल था, वो हमारे एचआरएम से रिलेटेड है। जिसको तो अब वो कैसे रिलेटेड है हम आज के ट्रेनिंग सेशंस में अपने स्लाइड के जरिए पाएंगे। तो रेस्ट एश्योर ऑल दिस टॉपिक शैल बी कवर्ड इन टाइम। और वैसे जून में हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एसओपी, आरएमएस एंड आरएमएस इंट्रोड्यूस किया था। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने इंट्रोड्यूस किया था और उस समय हमने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, ये जून के सेशन में। उसके बाद हम पाएंगे कि जुलाई के सेशंस में हम लोगों ने प्रो बोनो सर्विसेज पे अपना ट्रेनिंग सेशन होल्ड किया था, जिसमें हमारे प्रो बोनो सेशन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको हम लोगों ने शेयर किया था। ये सभी जो प्रेजेंटेशन है are already compiled and database into the archives of your law firm. If anybody is interested in getting all those relevant reports, yes, he may have it. He or she may have it after making a request to our chief operating officer. ओके, तो हम उसके बाद हमने जुलाई के बाद अगस्त में जो सेशन था उसमें हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट इंटीग्रेट किया था।
बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को हम बेटर वे में मोबिलाइज कर सके। तो उसके बाद आप पाएंगे कि जो नेक्स्ट का ट्रेनिंग सेशन था उसमें प्रोडक्ट इकोसिस्टम और बैंक अकाउंट जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। तो प्रोडक्ट इकोसिस्टम इसलिए था ताकि हमारे अलग अलग मैन पावर की जो अलग अलग यूनिकनेस है वो अपने अपने सेगमेंट में अपने अनटैप्ड पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सके। उसके बाद हमारा जो अक्टूबर का सेशन था उसमें सीआरएम का एक हम लोगों ने वाइडर प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया, जिसपे करेंटली हमारे 3 इनपुट्स मेंटेन हो रहे हैं, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स की तरफ से, एक बैक ऑफिस से, और एक हमारे सीटीओ के लेवल पे। ऑल दोज एक्टिविटीज आर डेटा रिलेटिंग टू दोज एक्टिविटीज have already been integrated into your CRM platform. Soon you will get those database in proper and sequence manner, tabulated and categorized before going to be distributed among all our team members. तो हमारे CRM का एक बहुत ही वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग ऑटोमेट भी करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे आगे जाके। तो ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करने से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है जो हमने लास्ट के कुछ मंथ में एग्जीक्यूट किए हैं। कुछ में से कुछ कंप्लीटेड है, कुछ इन प्रोग्रेस है, कुछ डिफर्ड मोड में है। वैसे ही हमारा जो नवंबर का एक सेशन था, नवंबर के ट्रेनिंग सेशंस में हमने पीडीसीए साइकिल पे बात किया था, प्लान डू चेक एंड एक्ट, जो क्यूएमएस से हमारे आया था। और उसके बाद ये हमारा जो दिसंबर का सेशन था उसमें एक हम लोगों ने और बड़ा चेंज इंडक्ट किया था जिसमें था SLS 26.0 वर्जन, जिसमें अपने सारे के सारे मैन पावर यानी हमारे इनपुट्स, हमारे प्रोसेस और हमारे आउटपुट्स, इन तीनों को हमने एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया था। तो ये आप इस तरीके से आप देखेंगे तो हम लोगों ने पिछले लगातार हर ट्रेनिंग सेशंस पे हम लोगों ने अपने को कैटापुल किया है और धीरे धीरे नए नए कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करते गए हैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में। और सिर्फ ट्रेनिंग सेशंस में ही नहीं हमने इनको इंक्लूड किया, बल्कि हमने अपने ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सर्विस डिलीवरी में भी इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने का प्रयास है। यस, there might be some difficulties in adoption of technology and getting themselves integrated into the platform, relevant platform, but rest assured our other team members and the chief of the departments will always be ready and willing to give you all kind of assistance and support. And these are certain factual aspects which I thought would be very relevant to share with all of you. And one important thing is that most often we used to listen a kind of sentence that yes, a maxim that action speak louder than words. So these are the list of actions which we have committed, completed, which definitely will create a kind of impression that we do believe in a culture of activities, in our culture of action or execution, instead of making a hollow sound or noise. Okay, तो ये कुछ हमारे 1.1 पे फैक्चुअल एस्पेक्ट्स थे जिसको हमने एक ब्रीफ में समराइज किया। अब आते हैं हमारे जो 1.2 का जो एक पॉइंट है, नेचर है। तो अच्छा, इन द मीन टाइम हमें एक चीज बताएं, जो 3.3 का जो हमारा प्रेजेंटेशन का जो संडे सागा एचआरएम एक्टिविटीज का है, इसके लिए एटलीस्ट 25 मिनट तो अलॉट होंगे। तो हम उससे पहले के कुछ इसलिए हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, तो बहुत ब्रीफ में हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आते हैं 1.2। तो चूंकि चैप्टर हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इसका नेचर हम कैसे एक्सप्लोर करें। तो आप ध्यान देंगे कि ह्यूमन रिसोर्स और एक होते हैं पर्सनल। एक छोटे से एग्जांपल के लिए भी हम बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे बोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग के प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की फैसिलिटी है। इससे अगर हम बोर्ड का यूज करेंगे तो इसमें बोर्ड का भी एक्सेस रहता है। एनीवे, अब जैसे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एक होता है, पब्लिक सेक्टर होता है। राइटिंग को हम रनिंग मोड में लेंगे, एक पब्लिक सेक्टर है, एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। तो हम बस बताना ये चाहेंगे कि नेचर की बात हो रही तो हम एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एचआर मींस व्हाट।
तो पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पर्सनल बोलते हैं, पर्सोनेल, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो आप अंतर का डिफरेंस समझिए। जो पब्लिक सेक्टर के जो एम्प्लॉय होते हैं पर्सनल बोलते हैं, इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए कंडक्ट यानी सर्विस रूल्स हमारे होते हैं, और वो वहां पे वो कमांड ओरिएंटेड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मतलब वहां पे एक वर्टिकल हायरार्की होती है, उसको डाउन द लाइन लाना होता है, तो इसलिए उसमें वर्क एलोकेशन होता है और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करने को कहा जाता है। यानी उसमें जो पर्सनल यानी उसके जो एम्प्लॉय हैं, दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू मेक सम डिसरप्शन और डेविएशन। तो वहां पे आप पाएंगे कि वहां पे लीडरशिप स्किल के बड़ी कम स्कोप्स होते हैं, इसलिए वहां पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, स्पैन माने फैलाव, ये कंट्रोल, यहाँ से कोई अगर कंट्रोल कर रहा है, ऊपर बैठा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है बहुत ही नैरो होता है। इसलिए उसमें किसी काम को करने के लिए एक आदमी दो को बताएगा, फिर वो दो को बताएगा, फिर वो दो को, ऐसे ऐसे करते आएंगे, तो ऊपर से लेकर नीचे तक इतना लंबा वर्टिकल्स बनता है कि उसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत स्लो होता है। क्यों? आप पाएंगे कि वहां के जो एम्प्लॉय हैं उनसे लीडरशिप एक्सपेक्ट नहीं की जाती। दैट्स व्हाई दे आर बाउंड बाय द सर्विस रूल्स, एंड मोस्ट ऑफन you might be इन सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जिसमें सुनने को मिलता है कि नहीं ये जाइए ऊपर से पूछिए, हमें नहीं पता। तो वहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ही नैरो होता है। तो इसके चलते उसके नुकसान क्या है कि वहां का वहां का स्ट्रक्चर बहुत ही ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत स्लो होता है। तो वहां का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो आप देखो कि अगर हमारा जो एम्प्लॉय है उसको अगर पर्सनल के तौर पे आप ट्रीट करोगे, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही ऊंचा हो रहा है और वर्टिकल हाइट बढ़ रही है, जिससे इंफॉर्मेशन फ्लो स्लो हो रहा है, ग्राउंड पे आने में इंफॉर्मेशन को बहुत टाइम लग रहा है। तो इसको सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है? कितना भी अच्छा आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो, मैन पावर से ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा ये मानना है, या प्राइवेट सेक्टर आमतौर पे देखती है कि उनके जो एम्प्लॉय होते हैं वो पर्सनल नहीं होते, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे उनको ट्रीट किया जाता है। यानी वो एक ऐसे वो ह्यूमन के रूप में एक रिसोर्स है। तो मतलब उनको स्वाभाविक सी बात है, उनको चांसेज या एक्सपोजर दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने स्किल को शार्प करें, और उनको मल्टीटास्किंग कराया जाता है कि कभी ये काम, कभी ये काम, कभी ये, कभी ये। इससे क्या होता है कि उनकी जो अलग अलग सेगमेंट में काम करने से उनकी लीडरशिप स्किल को शार्पनेस मिलती है, और जिसके चलते एक आदमी एक से ज्यादा मैन पावर को हैंडल करता है। तो आप पाएंगे कि इस तरीके से जो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो काफी वाइड होता है। इसके चलते जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, जो हाइट है वो कम रहती है, उससे इंफॉर्मेशन का फ्लो तुरंत नीचे आ जाता है, नीचे आने में सहूलियत होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक तरीके से, हमने कहा कि अगर आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल समझ गए, आप इसको बोलते हैं स्पैन माने फैलाव ऑफ कंट्रोल। अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट से उपजा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल आप समझ गए हैं, तो अपने स्पैन ऑफ कंट्रोल को वाइड करने के लिए हम लोगों ने अपने जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रखा है उसमें हमें पर्सनल की जरूरत नहीं है, उसमें हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। इसलिए हम अपने मैन पावर को ऑलवेज प्रीफर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे ही उनको हम ट्रेन करेंगे, न कि हम पर्सनल के तौर पे। तो यानी इसलिए उनके ट्रेनिंग सेशंस में, उनके एग्जीक्यूशंस में, या उनके बैक ऑफिस विजिट के दौरान आप पाएंगे कि लगातार उनसे मल्टीटास्किंग और आरएमएस पे, और उनसे ये कहा जाता है कि ओके सजेस्ट मी व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन डू यू एक्सपेक्ट, और व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज डू यू हैव। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते हैं, उसको इनोवेशन में अडॉप्ट करते हैं, तो एक लीडरशिप स्किल डेवलप होती है। तो यानी आप पाओगे, आते हैं अपने पॉइंट पे, ये थोड़ा सा हमारा बैकग्राउंड था नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 1.2 जो सब टॉपिक है जिसमें हमने कहा कि नेचर ऑफ द एचआरएम। तो एचआरएम का नेचर अपने आप में क्या होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे, वो हम लोग के लिए रेलिवेंट नहीं है। हम लोग के लिए रेलिवेंट ये है कि हम जिस एचआरएम पॉलिसीज को फॉलो करते हैं उसका नेचर कैसा है। तो आप पाएंगे कि उसमें
तीन एलिमेंट को हम फोकस करते हैं, जिसमें एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी हमारे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऐसा प्रोसेस हो जिसमें कंटिन्यूअस एक प्रोसेस हो हर वर्टिकल्स में, उसमें छोटे छोटे हम लोग काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं और उसको कंसिस्टेंटली करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे अपने को कंपाउंड कर रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और क्या है इसमें, आप पाएंगे कि इसमें ये एक फ्यूचर ओरिएंटेशन है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो टास्क है, ईयरली जो टास्क है, चाहे डिलीवरी का हो, चाहे फाइनेंशियल्स हो, चाहे हीट कंट्रोल का, नॉइस कंट्रोल का, या यूं कहे कि यूनिट इकोनॉमिक्स का, वो हमारा जो फ्यूचर ओरिएंटेशन है वो उसका पैरामीटर्स कैसा क्या दिखा रहा है। वैसे इसमें आप पाएंगे कि हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे भी काम करते हैं। तो यानी हमारा जो एचआरएम प्रोसेस है उसमें तीन हमको एस्पेक्ट्स दिखते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसमें प्रोसेस की कंटिन्यूटी मिलती है, फ्यूचर ओरिएंटेशन को हम फोकस करते हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी कल्चर को हम बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे एचआरएम में हमारा नेचर हो गया। तो यानी हम कोई इंडिपेंडेंट थॉट को नहीं पकड़ेंगे, हम ऐसे पॉइंट्स को टच करेंगे जो हम लोग अपने प्रोसेस में ऑब्जर्व करते हैं या करने का प्रयास करते हैं। ये हम इसलिए डाउन द लाइन शेयर कर रहे हैं ताकि हमारे टीम का डाउन द लाइन हर एक मेंबर अपने अप्रोच, अपने स्ट्रक्चर्स, अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशंस को समझ पाए। आते हैं 1.3 पे, जिसको स्कोप है। तो स्कोप में आप पाएंगे कि एचआरएम के स्कोप कैसे होते हैं। तो अलग अलग टेक्स्ट बुक में अलग अलग चीजें मिलेंगी, बट इसको हम इन ब्रीफ अगर कहें तो इसके तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक पर्सनल होता है, जिसमें जो मैन पावर इसमें होता है इंडक्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स के पर्सनल एस्पेक्ट्स में इस तरीके का प्रोसेस कैसे उसको हेल्प करता है। और दूसरा है इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड, कि अगर एचआरएम की पॉलिसीज को हम लोग बेहतर रखें तो ये हमारे इंडस्ट्रीज के बेसिक्स है उसको कैसे हेल्प करेगा। और तीसरा होता है कि वेलफेयर अप्रोच, कि हम अपने सोसाइटी, नेशन या स्टेट के प्रति हम कितने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे एचआरएम का जो स्कोप हो गया। एक तरीके से तीन पिलर होने चाहिए जिसपे हमारा एचआरएम पॉलिसी बेस्ड होना चाहिए। और इसको अगर डिटेल में हम जाएंगे तो हम लोग 1 to 1 भी इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेलिंग्स हम लोग आगे करेंगे जब कभी सटर्न लॉ हाउस प्रेजेंटेशन अपने अपने जब लिटरेचर जनरेट करेगा तो उसमें इन सभी पर डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगे। और तो ये हमारे नेचर में हो गए, वैसे ही सॉरी स्कोप में हो गया। अब आते हैं लास्ट का 1.4 जो है, जिसको ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स में क्या होने चाहिए। तो बतौर टीम मेंबर्स जो हमारे मिशन है, जो विजन है, उसके ऑब्जेक्टिव्स में भी जैसे हमने कहा ना कि जो स्कोप में तीन स्कोप होते हैं, वैसे इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो थोड़ा सा उसी से आता है। स्कोप से ही ऑब्जेक्टिव समझ में आती है, क्योंकि जहां पे आप जाएंगे वहीं पे तो ऑब्जेक्ट फोकस करेंगे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स भी इसी तरीके से तीन होते हैं। जैसे सोसाइटल, सोसाइटी के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं, तो सोसाइटी के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी इंडस्ट्रीज के लिए हम अपनी कंपनी में कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज एट लार्ज के लिए कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि फला फला एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक हमारा ये टास्क है या ये। वैसे ही एक होता है कि हमारा फंक्शनल अप्रोच, कि ये सब तो ठीक है, सोसाइटल और ऑर्गेनाइजेशनल हमारा ऑब्जेक्टिव्स तो मीट कर रहा है, मगर हमारा जो फंक्शनल अप्रोच है, वर्क लाइफ बैलेंस है, वो बिगड़ रहा है। तो हम लोग उसको भी बैलेंस करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन का सेशन था एचआरएम पे। तो ये थोड़ा सा एकेडमिक लगेगा, मगर हम ये कहेंगे कि ये सारे पॉइंट्स को अगर 1 by 1 पॉइंटर के तौर पे यूज करें, और कहीं पे उसमें कोई इशू आ रहा है या लग रहा है कि कहीं पे देयर आर सम सिचुएशंस आर देयर आर सम कंटिजेंसीज wherein the management is expected to make some modification or some upgradation in the existing policy of the HR, then definitely we would take it up and incorporate into the process after getting clearances from all the team members, all the participant. तो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो जो दूसरा है इसमें है एसएलएच की जो मैकेनिज्म है। तो एचआरएम के मैकेनिज्म अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द ग्लोब अलग अलग है, मगर हम लोग अपने स्ट्रक्चर में इसके मैकेनिज्म को लेके हमारे पास क्या
प्रोसेस है। तो आप इसमें 3 चीज आप देखेंगे, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीज होती है। एक होता है इनपुट होता है जिसमें हम कोई चीज देते हैं, दूसरा होता है आउटपुट होता है जिससे हमें कोई चीज मिलता है, बीच में दोनों के क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, सिस्टम, ये प्रोसेस होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास इनपुट एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हम उस इनपुट को इंजेक्ट करते हैं और उसमें कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं तो वहीं से हमको आउटपुट मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप पाएंगे कि इनपुट्स के लिए क्या होता है, रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होता है। हम लोगों ने लास्ट के सेशंस में जिसमें हमने भी फैक्चुअल एस्पेक्ट में डिस्कस किया क्यूमियस के बारे में, वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था पीडीसीए साइकिल में कि मैन पावर, रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजें हमारे इनपुट्स में जाते हैं। तो इनपुट्स के बाद ये एक सिस्टम होता है, सिस्टम के जरिए हम काम करते हैं। कहीं पे फिजिकली आपको देखने को मिलेगा, हम लोग फिजिकल प्लस डिजिटल पे हैं, इसलिए हम लोग फिजिटल एक वर्ड यूज करते हैं, फिजिटल। फिजिटल की स्पेलिंग क्या होगी, फिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल को मिला के बनता है। तो हम लोग फिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोसेस को, अच्छा ये तो हो गया प्लेटफॉर्म, वैसे ही प्रोसेस को भी हम लगातार एसओपी, आरएमएस और एसपीसी, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के जरिए हम लोग अपने प्रोसेस को भी अपडेट करते हैं ताकि हमारा आउटपुट बेहतर हो सके। आउटपुट बेहतर हो सके मींस कि हमारा जो गोल्डन रूल है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं गोल्डन रूल्स में, कि हम कहते हैं कि पहला हमारा हीट फैक्टर, हमारा नॉइज फैक्टर कंट्रोल में आए, दूसरा हमारा हीट फैक्टर कंट्रोल में हो, और तीसरा इन दोनों को कंट्रोल करने में हमारी यूनिट की इकोनॉमिक्स न बिगड़े, मतलब हमारा जो अकाउंटिंग है वो न बिगड़े, यूनिट इकोनॉमिक्स। आप कहेंगे ये अच्छा, कुछ लोग इसमें नए होंगे उनके लिए हीट फैक्टर, नॉइज फैक्टर एक नया कॉन्सेप्ट होगा, तो हम बहुत छोटे में बोल दें कि किसी काम को करने में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब नॉइज फैक्टर बढ़ रहा है, यानी वहां पे टीम की ट्रेनिंग गड़बड़ है या टीम के लेवल पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, चाहे इनपुट पे प्रॉब्लम आएगा चाहे प्रोसेस में होगा, तभी उनका आउटपुट बिगड़ रहा है, तभी तो नॉइज जनरेट हो रहा है। तो इसलिए नॉइज फैक्टर को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट के साथ साथ सभी पूरी टीम को ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं भाई हमको नॉइज फैक्टर को कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल कैसे होगा इसको हम लोग टाइम टू टाइम डिस्कस करते जाते हैं। तो नॉइज फैक्टर को कंट्रोल करना, वैसे हीट फैक्टर को कहीं पे कोई चीज समझने में नहीं आ रही, इसका मतलब कि प्रॉपर एलोकेशन नहीं हुआ है, असाइनमेंट टास्क अच्छा से नहीं हुआ है, या उनके जो नीड एंड स्पेसिफिकेशन है क्लाइंट के या केसेस के उसको अच्छे से बताया नहीं गया है। जैसे बताया गया है कि हमें ये एप्लीकेशन लगाना है कोर्ट में और आपको उससे रिलेटेड डेटा आपने उनसे लिया ही नहीं, बार बार उनको फोन करके आप डेटा ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपने ब्रीफ अच्छे से नहीं लिया है, इसलिए ये हीट फैक्टर को इनहेंस करेगा, उससे डिलीवरी स्लो होगी, कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो इसलिए हीट फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ब्रीफिंग और प्रॉपर आरएमएस ये सब की भी जरूरत पड़ती है। और ध्यान देंगे कि सिस्टम में जब भी हम जाएंगे तो सिस्टम में अच्छा खासा ये मैन पावर इंटेंसिव प्रोफेशन है, किसी भी फोरम पे जाएंगे वहां पे नंबर्स ऑफ पीपल्स मिलते हैं, तो वहां पे वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो चांसेस है कि आपके हिट्स बढ़ जाए, हिट फैक्टर बढ़े, इसलिए अपने रिजीम को हम लोग फॉलो करते हैं और बैक टू बैक अपने सिस्टम को अपग्रेड करते जाते हैं। और इन दोनों को मैनेज करने में हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स, हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में रहे, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा क्लाइंट हमको पे करता है उसके पेमेंट के बेसिस पे अलग अलग कंपोनेंट में मनी एलोकेशन के बाद जो मार्जिन आएगी उसी से आप निकाल पाओगे कि जो अब सरप्लस आया है उसको हम अगेन बिजनेस मॉडल पे इंप्लीमेंट करें, मैन पावर पे इंप्लीमेंट करें या प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करें। तो इसलिए यूनिट इकोनॉमिक्स का भी बेहतर रहना बहुत जरूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो मैकेनिज्म हम लोगों ने बिल्डअप किया है, तो मैकेनिज्म को उस बेसिस पे देखेंगे आप। तो जैसे इसमें रिक्रूटमेंट है, तो रिक्रूटमेंट है, ये ट्रेनिंग है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। तो एक्चुअली ये तीनों अभी स्लाइड में आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट हमने उसको टेबुलेटेड मैनर में हमने उसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट बांटे हैं, उसमें एक एचआर डिपार्टमेंट का है, उसमें जितने उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये सब चीजें मेंशन है। तो रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग से उसके ब्रांच है, वैसे उसमें ट्रेनिंग का ब्रांच है, परफॉर्मेंस असेसमेंट का उसमें ब्रांच है, और पॉलिसीज का भी है, प्रोग्राम्स का भी। और एक चीज यू विल बी ग्लैड टू हियर इट दैट कि आई हैव इन द सेंस कि मैनेजमेंट हैड स्टार्टेड टू डिप्लॉय
number of participants into different department. तो जैसे हमारे एचआर डिपार्टमेंट के जो चीफ है उनको चीफ पब्लिक ऑफिसर, चीफ पीपल ऑफिसर बोलते हैं, सीपीओ। इनको पहले बोला था चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, तो इसको अपग्रेड करके ये किया गया। ये काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो अब जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट है उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, तो अब ब्रांचेज में जो अपॉइंट हो रहे हैं उनको हेड कहा जाता है, वो हेड। तो हेड रिक्रूटमेंट सेल, वैसे ही हेड ट्रेनिंग। तो ऐसे से करके तो हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट है उसमें करेंटली हमारे एक चीफ हैं और एक हमारे हेड हैं। हेड जो है वो रिक्रूटमेंट को लीड करते हैं और चीफ जो है पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं। अच्छा, टाइम बहुत फास्ट निकल गया। ओके, वी आर गेटिंग लेट, सॉरी, नोबडी हैज intimated me that we are getting late. Anyway, again I'm making myself more speedier. तो ये हमारा रिक्रूटमेंट का था। तो इसमें ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग हम लोग ऑनगोइंग कर रहे हैं। तो यानी कुल मिला के हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको जैसे हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वैसे बाकी के भी जो डिपार्टमेंट है, वेयर यू विल गेट इट फ्रॉम द स्लाइड आफ्टर आवर सीपीओ। तो उसमें आप देखेंगे कि उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को इजाफा कर रहे हैं। तो इसमें जब भी किसी ह्यूमन रिसोर्स को इंडक्ट करेंगे तो वो एचआर डिपार्टमेंट के जरिए ही इंडक्ट होगा और रिक्रूट होगा, ट्रेन होगा, वहां से परफॉर्मेंस असेसमेंट होगा। उसके अगर इंटर्नीज है या एग्जीक्यूटिव है तो वहीं से उसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए फिर उसके बाद उसको रेलिवेंट डिपार्टमेंट में उसका इंडक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बेहतर वे में ट्रेन करें, इंपावर करें, ताकि वो सिस्टम में इंटीग्रेट हो सके विदाउट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ हीट फैक्टर और नॉइज फैक्टर। तो ये हम लोग अपने एचआर डिपार्टमेंट के जरिए इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है, ये आगे धीरे धीरे आपको मिलेगा। बाकी चीजें आपको हमारे सीपीओ खुद ही अपने स्लाइड, अपने संडे सागा एक्टिविटीज में एक्सप्लेन करेंगे, तो हम इस पे बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो बस इतना ही हम कहेंगे। आते हैं नेक्स्ट के पॉइंट पे, जो है वेयर डू वी स्टैंड। that is key currently, what are the level of achievements and what are those milestones which what are those tasks which we are yet to wherein we are still lagging behind. तो आप पाएंगे कि जैसे अभी हमने जो अपने माइलस्टोन हमने मतलब वी ऑल द टीम मेंबर्स सो फार आफ्टर कोलैबोरेटिंग इनटू ए स्पेस फिजिकली या डिजिटली, जो भी हमने परफॉर्म किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज परफॉर्मेंस आई am making a confident declarations that we are in very advanced positions of SLH version 26 adoption and integration. तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें अब की बार हमने अपने डिजिटल एसेट्स में इजाफा किया है। आप सभी को उसके लिटरेचर डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएंगे। तो पहले हम लोग अपने टाइम को डिजाइन करते थे एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम के जरिए, अब की बार हम लोगों ने अपने परफॉर्मेंस को भी डिजाइन किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जरिए। और इन दोनों डिजाइन्स के चलते जो हमारा आउटपुट, यानी हमने अपने टाइम को डिजाइन किया एसएलएच कैलेंडर की मदद से, अपने परफॉर्मेंस को डिजाइन किया अलग अलग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मदद से। इन दोनों की मदद से हमारा जो रिवेन्यू मॉडल हो, हमने अपने रिवेन्यू को भी डिजाइन किया है। तो वो तीनों डॉक्यूमेंट आप लोग को मिल जाएगा, ताकि आप हमारे जैसे टीम का बॉटम पे जो मैन पावर है वो भी समझे कि हमारा अप्रोच क्या है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तो इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एसएलएच वर्जन 26.0। अब ये 1.0 के बाद उसका 0.1, 0.2, 0.3, ये उसमें छोटे छोटे अपग्रेडेशंस जो होते रहते हैं वो आता जाएगा। You will get a complete archive based on the basis of the upgradations made herein into your organizations. So rest assured you will get complete historical accounts of your firm, and that because there is a saying that future live in the past. So if you are looking to get a kind of glimpse of any particular organizations, then you will have to, or you are supposed to go into the remote history of that particular organizations. Otherwise
nobody will get a clear picture of the future aspects of any particular firm or organizations. That's why our historical accounts are relevant to all of us. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ये मिल जाएगा. तो हिस्टोरिकल अकाउंट के साथ साथ जो एक अलग बदलते हुए परिस्थितियों में या इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है, अपने यूपी में इंप्लीमेंट भी हो रहा है, और या जो डिजिटाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा है, जो हमारे एआई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, या अभी क्लाउड का नया वर्जन आया है जो एड ऑन प्लग इन मॉडल पे आया है, क्लॉडी करके, जो एंथ्रोपिक का क्लॉडी है सर. तो इसके चलते कहा जा रहा है कि व्हाइट कॉलर जॉब भी सीखेंगे बहुत तेजी से. और अभी आप लोग खुद भी देखेंगे कि करेंटली आपकी फर्म अच्छा खासा एआई को इंडक्ट कर रही है अपने डिलीवरी मॉडल में, और काफी हद तक ड्राफ्टिंग हम लोग स्मूथ कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू आवर डिलीवरी प्रोडक्ट्स डिजाइन सेगमेंट, डेवलपमेंट सेगमेंट और प्रोडक्शन सेगमेंट ऑफ द बिजनेस मॉडल. तो हम लोग भी टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक इरा से हैं, या यूं कहे कि प्रोटेक या टेक सेवी पीपल हैं. तो हम टेक्नोलॉजी से नहीं डरते, बस ये है कि टेक्नोलॉजी का एक जो रैंडमनेस है, उसकी जो वेरिएबिलिटी है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें. तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बैकग्राउंड से हमारा ह्यूमन रिसोर्स बिलोंग करता है, उसको टेक्निकल इंडक्शन में स्मूथली इंटीग्रेट करने के लिए हमारे सीटीओ और भी मैन पावर है, वो अवेलेबल रहेंगे. तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एसएलएच वर्जन 26.2 करेंटली हमारा जो चल रहा है. अब आते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. ये पॉलिसीज एंड जो प्रोग्राम है, ये अगेन यू विल गेट डिटेल ऑफ इट इनटू द स्लाइड ऑफ 3.3. तो आप उसमें पाएंगे कि जो ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है कि पॉलिसीज क्या है जिसको फर्म प्रीफर करती है. तो just right now we are busy into making our publication main manuscript of our publications. यानी हम लोग 2000 नेक्स्ट ईयर में हम एक फ्यूचर प्लान रखते हैं कि हमारी पहली जो पब्लिकेशन है यानी बुक है वो रिलीज होगी. उसमें आप पाओगे कि पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लेके एक डिटेल आपको उसमें एक वो मिलेगा, एक गाइडलाइन भी मिलेगा और डिटेल डिस्क्रिप्शंस भी मिलेंगे. तकरीबन 250 पेज के ऊपर की होगी आपके फॉर्म की पहली बुक. तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं. डेफिनेटली वी विल गेट इट पब्लिश विद इन द टाइम. तो ये उसमें पॉलिसीज एंड प्रोग्राम के बारे में डिटेल्स मिलेगा. बस इसको आप नटसेल में ऐसे कहें कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसमें आप कैसे कैसे सेगमेंट्स के डेटा पाएंगे. जैसे उसमें इंडस्ट्रियल लेबर लॉ से जो लेटेस्ट लॉ है इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 4 कोड मिल के इंडियन लेबर लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आज के समय. उसके जितने ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, गाइडलाइंस है, उसको भी हम लोग एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज वी आर ट्राइंग टू गेट वेरियस वेलफेयर मेजर्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर प्रोग्राम ऑफ एक्शन. जैसे अगर कोई नॉन लीगल बैकग्राउंड से है तो कैसे उसको हम प्रोविडेंट फंड के लिए मोबिलाइज करें, या कैसे उसको हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इंश्योर करें. तो ये सब चीजें अभी नया लॉ इंडक्ट हुआ है, तो इसके वेरियस रेमिफिकेशंस को स्टडी करना, प्लस हमारे जो रिसोर्सेज है उसकी अवेलेबिलिटी और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं. तो ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में आपको डिटेल वहां पे मिल जाएगा. तो ये लेबर लॉ का हम लोग एडॉप्शन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हमारे हैं 26 में, इसमें चाहे लीगल एस्पिरेंट्स हो चाहे नॉन लीगल एस्पिरेंट्स हो. नॉन लीगल मतलब एग्जीक्यूटिव साइड से इनके मॉड्यूल्स को प्रिपेयर करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना. ये कुछ ऐसे टास्क है जो हमारे चीफ पीपल ऑफिसर्स यानी सीपीओ के सुपरविजन में एंड विद द असिस्टेंस ऑफ आवर अदर हेड्स ऑफ द पर्टिकुलर एचआर ब्रांच ये इम्प्लीमेंट होना है. तो या इवन कुछ तो हम कर भी रहे हैं. तो ये सब चीजें आपको पॉलिसीज एंड प्रोग्राम में मिलेगा. तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जैसे हमने छोटा से बताया है, तो कहेंगे स्क्रीन तो यहाँ पे था बट आपने इसके बाद इसका स्लाइड नहीं लिया. तो ये एक तरीके का सेकेंड लास्ट मीटिंग है. इसके बाद एक जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम है आरओसी का है 8 मार्च को. उसके बाद इवन हमारे बैक ऑफिस से भी जो प्रेजेंटेशन होगा वो स्लाइड पे ही होगा. बाकी जो संडे सागा की जो एक्टिविटीज में रहेंगे वो तो अपने स्लाइड से या और अलग अलग मोशन पिक्चर के जरिए भी अपना प्रेजेंटेशन देंगे.
तो हमारा जो सैटर्न डिजिटल लैब है जिसको सीटीओ लीड करते हैं, उनका SLS 03 ब्रांच है, तो धीरे धीरे हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को और भी डायनामिक वर्सेटाइल बनाएंगे। तो अभी के लिए ये था, इसमें बाकी हाँ, तो जैसे हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो ये एक छोटा सा हमने अपने लेवल पे प्रेजेंटेशन दिया कि टॉपिक, यानी हम समराइज कर दे रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन को। फैक्चुअल एस्पेक्ट्स में हमने अपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स को डिस्कस किए, शेयर किए। नेचर में हमने बताया कि हमारे नेचर को हम ब्रॉडली 3 सेगमेंट में बांटे हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एचआरएम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, और एचआरएम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को प्रमोट करता है। ये हमारे नेचर में था, यानी नेचर ऑफ एचआरएम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोसेस। और स्कोप में हमने बात किया कि स्कोप में हमने पर्सनल एस्पेक्ट पे बात किया, वेलफेयर मीजर्स पे बात किया, और इंडस्ट्रीज ओरिएंटेशन पे बात किया। ये स्कोप होता है। इन तीनों, ये इनको ध्यान में रख के हम अपने एचआरएम पॉलिसी को डिजाइन डेवलप करते हैं। वैसे ही हमने ऑब्जेक्टिव्स में बात किया कि जैसे स्कोप होता है उसी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव को भी डिजाइन और डिफाइन करते हैं, जिसमें हमारे सोसाइटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस होते हैं, और हमारे फंक्शनल ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इनको मीट करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए एक एचआरएम पॉलिसी और प्रोग्राम्स फॉर्मुलेट करती है। इसको पाने के लिए आप अपने एक कुछ मैकेनिज्म्स को डिजाइन डेवलप करते हैं। तो हमारे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का अपना मैकेनिज्म है, उसमें अपने ब्रांचेज हैं। इसकी कॉपी आप लोग को मिल जाएगी, स्लाइड में उसका एक आपको पिक्चर भी मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने किया। और जो थर्ड टॉपिक था वेयर डू वी स्टैंड, इसमें हमने समराइज में बताया कि हम एसएलएच वर्जन, लेटेस्ट वर्जन 26.2 पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिकल मोड में अपने इनपुट्स को, अपने प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं। सारे इनपुट्स रिमोट बेसिस पे, जो जहां है वहीं से रिमोट बेसिस पे इनपुट्स ले लेते हैं। क्लाउड बेस्ड है, सर्वर क्लाउड के जरिए सारे डेटा हम लोग अपना ले लेते हैं, और उनको सेलर कॉस्ट, डिजिटल स्पेस, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज फर्म की तरफ से प्रोवाइड होती है। तो रिमोट साइट से भी हम डेटा इनपुट ले लेते हैं। उसको एक प्लेटफॉर्म है जिसको फिजिकल बोल रहे हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल, उस पर हम उसको सारे रिपोर्ट्स या सारे डेटा को बोर्ड करते हैं। फिर वहां से हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, चाहे QMS हो, चाहे CMS हो, चाहे RMS हो, और या SOP इसके जरिए। फिर उसको हम एक बेहतर आउटपुट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे प्रोसेस में कंसिस्टेंसी डे बाय डे इंप्रूव होती जा रही है, और जैसे जैसे हमारी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती जाएगी प्रोसेस में, हमारे डेविएशंस कम होते जाएंगे। आप पाएंगे कि दिस विल गिव अ काइंड ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट upon all those actions wherein we are involved with। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट ऐसे ही मिलता है कि आपके छोटे छोटे स्टेप्स हो, स्मार्ट स्टेप्स हो, और वो कंसिस्टेंट हो, दे वो खुद ही लॉन्ग टर्म में आप पाओगे कि कंपाउंडिंग जनरेट होता है। तो इन बातों के साथ ये हमारे द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वाज वेस्टेड विथ केम टू just a minute, come to close with। तो by doing this presentation, yes, I have exceeded to somehow my allocation of the time period, but anyhow, right now just I am going to play the role of our moderator. That's why I am with the permission of our moderator. Moderator, may I be permitted to deliver the dash directly to our CPU? Yes, okay. Go ahead. Okay. Then now onward, our CPU, actually it is the first presentation of our Chief People Officer. On behalf of our CPU, I would request to all of you kindly bear him if there is any kind of technical glitch or noise or heat factor. But rest assured, he is a young guy, and I have invested into him a lot of energy and skills, and I'm expecting that definitely he will perform in the time yet to come. That's why the whole slide he has prepared himself, and in the preparation of those slides he has came across through various kind of heat and noise
but anyhow, he has done nice work. So over to you, our Chief People Officer, Mr. Naveen Kushwaha. Yes, you are free to use the language. You may use English, or you may follow the language wherein you feel comfort with. Okay, over to you, our Chief People Officer. Thank you. Kindly unmute your mic and give start giving your presentation. You are hereby given less than 20 minutes. Okay, over to you. Kindly, Thank you, sir. Welcome, okay. everyone. Today, we will discuss the framework of human resource Where is management. your just minute? Kindly make yourself visible. Or if you are not in positions to get your video live stream, then you have to share the screen so that we could navigate through your slide. Okay, Okay. sir. Okay, sir. Is my screen visible? Yes, sir, your screen is visible. Welcome, everyone. Today, we will discuss the framework of human resource management within our organization. At its core, HRM, which means human resource management, is the management of people working in an organization to achieve goals effectively and lawfully. इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें एचआरएम क्या होता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि लोगों को इस तरह से मैनेज करना ताकि हमें अपना जो गोल है वो विदाउट इलीगली और अच्छे से प्राप्त हो सके। एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम आर टू ensure proper utilization of human resource and to maintain professionalism, discipline, and ethics. In of Our Sorry to interrupt. Our CEO sir is raising hand. Yes, sir. Mr. CPO, kindly use the yes. Kindly just there is a height. There is a dialog box wherein. Okay, okay. Keep it on. Nice tuning. such and to comply with labor and employment laws and to enhance employee satisfaction and productivity. हम जानते हैं कि एचआरएम जो होता है एक मेन कॉन्सेप्ट होता है जो हर फैक्टर में यूज किया जाता है एंड इसके जो वर्क्स हैं वो परफॉर्म करते हैं वेरियस फंक्शंस सच एज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट लीगल प्रोफेशनल्स। हम ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करते हैं जो कॉम्पिटेंट होते हैं, सक्षम होते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है एंड सैलरी एंड इंसेंटिव्स ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, स्पाइल्स, वेलफेयर एंड ग्रीवांस हैंडलिंग। एचआरएम का एक मेन वर्क होता है कि वेलफेयर करें और जो एम्प्लॉयज की तरफ से जो ग्रीवांसेस आ रहे हैं उन्हें हैंडल करें, उन्हें अपर लेवल तक पहुंचाए। और थर्ड है इसका इम्पोर्टेंस, स्मूथ वर्किंग ऑफ law firms, coordination between legal and non-legal staffs, compliance with labor law and professional standards. Fourth one is conclusion. Human resource is the backbone of law firm
ensuring efficiency, lawfully and ethical management of human resource. मैं चाहूंगा कि सीईओ सर इस स्लाइड को प्ले करें. Okay, very good. Your slide is visible. हाँ, keep it on. ये नीचे ये जो बॉक्स दिख रहा होगा, इसको आप क्लास कर देंगे तो भी आपका, हाँ, ये जो दिख रहा है, हाँ, बैक तो, हाँ, इसको क्लोज कर दिए तो भी चलेगा. ओके, कीप इट ऑन एंड काइंडली स्टिक विद द टाइमलाइन. ओके, गो अहेड. And our second slide, organizational structure. Our 2026 organizational structure is designed for maximum efforts. At the center is CEO. आप देख सकते हैं यहाँ पे CEO है, and supported by specialized department including CTO, CFO, CRO, COO, and CPO. Our HRM is included this way. I am CPO of this particular department, and CTO deals with technical, security, privacy and compliances. मतलब जो हमारा CTO है वो बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड CFO हैं जो हमारे फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट एंड रिक्रूटमेंट में फोकस करते हैं. CRO C में है CRO जो रिसर्च, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन पे उनका जो फोकस है वो रहता है. एंड इसी तरह सभी के डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर टास्क होता है, एंड इन्हीं सबको सेंट्रल में है CEO जो इन्हें रिपोर्ट करते हैं बेसिकली. And our third slide is cost factor. I am audible? Hello. Yes, sir, you are Yes. audible clearly. हाँ, CTO kindly be in positions to assist our CPO. Okay. Cost factor in HRM. Third slide is cost factor. Reflects to refer to expenditure including by a law firm on its human resource. First है recruitment cost, which deals with includes expenses on advertisement, interviews, background verification, and selection of advocates and staffs. And second one is training cost, including cost of orientation programs, legal drafting training, workshop, seminars, and skill development sessions. And third one is expenses like employee well-being such as medical facilities, safe working environment, rest area, and basic amenities. And ये जो थर्ड है इसमें वेलफेयर की ऐसी बात की गई है कि कभी कभी ऐसे टाइम होते हैं कि जब हमें ओवर वर्किंग करना पड़ता है, एंड एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी हमें चाहिए रहता है कि वो अपना बेस्ट एफर्ट दें. तो ये हमारी भी लाइबिलिटी होती है कि हम उन्हें भी ऐसा कुछ प्रोवाइड कराएं जिससे उन्हें एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल सके कि अपना बेस्ट दें. एंड फोर्थ वन इज वेज एंड सैलरी कॉस्ट, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरी, allowance, bonuses, and incentives in compliance with employment laws. And कॉस्ट फैक्टर जो है सैलरी में ये बात करता है कि सैलरी और अलाउंस ये डेली बेसिस पे दें. लाइक
हम जैसे किसी एम्प्लॉय को टास्क दे कोई सा और वो उसे बेस्ट वे से करे तो हम उसे बोनस भी दे सकते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, जिससे उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसका मन भी है, वो टास्क को पूरा करने में लगा रहेगा। एंड फिफ्थ वन इज सोशल सिक्योरिटी, statutory expenses like provisional fund, ESI, and other social benefits. Kindly keep in mind the running passing of the time, so you have hardly 5 minutes. Go speedily and loudly only. Fourth one is program action, recruitment and selection. जो हमारी सिलेक्शन है वो एकदम फेयर हायरिंग हो, ना कि किसी नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म से एकदम सेपरेट रहे। फेयर होनी चाहिए हमारी जो प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, स्किल एंड इफिशियंसी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी ट्रेनिंग जो है वो होनी चाहिए। वेज एंड कॉम्पनसेशन होने चाहिए। वेलफेयर मेजर होने चाहिए, जैसे कि हम लोग ने पिछले स्लाइड में बात की थी। डिसिप्लिन एंड ग्रीवांस रिडर्सल, हमें पता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हैंडलिंग एंड एक डिसिप्लिन होना चाहिए बेटर वर्क के लिए। वर्क फोर्स प्लानिंग मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, and fifth slide is deals with monthly reports. Monthly reports help in regulate monitoring You are not audible. etc. Okay. Okay. Yes, audible. Yes, sir. And third one is compliance related status, ensuring adherence to labor law, professional ethics. And fourth is relation status. And fifth one is grievances, reviewing employees' complaint related to workload, working hour, behavior, etc. And sixth is training program, human capital development, improving legal knowledge, drafting, advocacy skill, etc. And leadership training, like developing leadership qualities by the supervision of seniors and partner for team management and decision making. Third is innovation. यू एंड बी, आपको पता होगा कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनोवेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिससे जो हम गोल हैं वो बेटर एंड इफेक्टिव वे से अचीव कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, enhancing accuracy and efficiency and quality of legal service. फोरम विजिट, ये जो फोरम विजिट है ये हमें प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारे कई सारे जो गोल हैं वो अचीव होते हैं। लाइक हमें हमारे स्किल डेवलप होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, ड्राफ्टिंग होती है, क्लाइंट कैसे हैंडल किया जाता है, केस एनालिसिस स्किल डेवलप होती है, एक्सपोजर टू वर्क इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंड कोर्ट रूम। आपने देखा होगा कई सारे जो एडवोकेट हैं या अदर मेंबर हैं उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है कोर्ट की अवमानना के लिए। एंड बिहेवियर एंड इथिकल ट्रेनिंग, गोल्स प्रोफेशनल कंडक्ट एंड लीगल एथिक्स। प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ये
जो लॉ फर्म है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसका एक खुद का एक नेटवर्क हो, कॉन्टैक्ट बिल्ड हो दूसरे से लीगल एंड जुडिशियल फील्ड में। ये जो हमारे SLS की वर्कशीट है हमारी, जिसमें एक्टिविटीज दी गई हैं यहाँ। ये आप देख सकते हैं। चीज होती हैं एंड सर्टिफिकेट दी जाती है इंटर्नीज को। एंड नाइन्थ इज रोल of HRM in a law firm. First is recruitment and selection, hiring skilled lawyer, internees, and staff based on merits. And second, training and development, providing continuous professional You, and excuse me, CPO, you have hardly 2 minutes to conclude your all slide. okay, sir. And third is salary and incentive with a fair compensation and motivation. Fourth is performance appraisal, like work quality, efficiency, and contribute. Fifth is employee welfare. Maintain a health, safe, and supportive work environment. And sixth is discipline and grievance handling. Maintaining discipline and resolving internal conflict fairly. And there are some responsibility of HR, like proper manpower planning, maintaining employee records, building coordination between departments. This is the main focus, which is building coordination between departments and protecting employees' rights and supporting management decisions with accurate HR data. Standardization in HR, uniformity in nature, same HR rules and procedure for all employees, fair treatment of employees, equal treatment, and in recruitment without any favoritism, improved efficiency, standard procedure, reduce confusion and delay, consistency, uniform application of HR policy across the firm, better control and supervision, help management maintain proper efficiency, platform integrity. Platform integrity refers to the using of digital HR systems, HR management, online system for first hand, online system for recruitment, attendance, role play, and records, time cost and saving. Second is reduce paperwork and administrative workload. And third, accuracy of data, minimize take in for decision. And this is our career program chart, which shows firstly internees time 12 months, and after that associate 2 years, senior associate
2 years and above this, you should. Respected CTO sir, time limit is over, I think. Okay. Yes, Just, conclude हाँ, yourself. Then हाँ, just complete in 10 seconds. Complete your slide in 10 seconds. Yes. ह्यूमन रिसोर्स, ये सब हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। ये हमारे सीईओ हैं, सीओओ, सीटीओ, सीआरओ, सीपीओ, मी एंड एचएसओ, एचआरसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Okay, over to you, moderator, madam. Okay. Thank you for the wonderful slideshow, and this session for the question answer session. Start from the COO sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? फर्स्ट ये कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि कैसे हम किसी को रिक्रूट कर सकते हैं कि वो इफेक्टिव और मतलब इफेक्टिव रोल में काम कर सके फॉर्म के साथ और बेटर वे में। ये क्वेश्चन है हमारा। Thank you, sir. Now next move to the HSO sir. If you have any question, you may ask. Am I audible? Hmm. If you have any question, you may ask. No, no. Okay, thank you. Now next to the head of RP. Sir, if you have any question, you may ask. Excuse me, madam moderator, you may give an option to raise a hand if participants have any questions to raise hearing. This is that side. Okay, if you have any Okay. question, you may hand your raise so I can come to you, collect your questions. Sorry for the interruption. I may have one question, if I may be allowed to ask. Yes, please go ahead. My question is about the thing which our respected CEO talked about, this hierarchy in the private sector and the public sector. Now, we are working in a private organization. So the hierarchy, the escalation, and the passing of information or interaction is based on it should be based on private sector, since we have this system. But due to some reason, because he is single-handedly managing every portfolio of our organization, that is why it is difficult for him to completely rely on the particular individual who is head of his or her own department. So when we will be able to achieve that particular private sector hierarchical escalation and information system, since we are still into the public driven system? So you have to only questions in 10 to 20 seconds. Okay, I got it. I get it. Okay, I have just written down the questions. I will answer simultaneously. Okay, firstly, just collect all those other questions if there is any. Okay, video sir, if you have questions, please ask. You raise your yes, hand. ma'am. Yes, ma'am. My question is, what is the basic difference between nature and scope of HRM? Only one difference, basic main difference. Okay. Okay. Now, two more person which doesn't raise hands. Can I go to interact them? Yes, if including yourself, do you have any questions to raise? Shikha, yes, madam moderator, you are also a participant. You may put your questions too.
I'm in position to answer all those questions. Okay, what's your question? I don't have Uh, any question, but I can okay. go with it further. Okay, just our HRC is just raising hand. Yes, yes, you are. Make yourself unmute. I am in positions to hear the questions. Yes, HRC. Another question is based on the technological advancements and the AI inclusion in our organization, which we are lagging behind. Not in the terms of other members, but if I take it to myself only, that I may be crawling and struggling in coping up with the organizational expectation in regard to me when it comes to. It's a, oh sorry, sorry, it's a individual matter. We will handle it in private mode. So Okay. currently this platform, this content will go to the YouTube database. That's why we would not prefer to discuss upon this. But rest assured, we will handle if there is any kind of tickets raised or issued on your behalf. Okay. Okay. Yes, sir. Uh, Thank you. Okay, just what we say, our clock are just getting rebellious uh, day by day. So instead of going to lose any more precious moment, I'm in positions to give the answer of all those questions. Uh, okay, first question was raised by Wilson sir, our chief operating officer's question was, what should be the recruitment process? Instead of having a process, actually his question was based on the quality of the manpower. So how could I select or recruit a appropriate set of skill? Actually, in answer to those questions, in reply to that questions, my answer is actually there is a philosophical gap which most of the organizations does fall in line with. Like we do not hire any particular man. Actually, we do hire a set of skill. Those set of skill may be posited or may be having a kind of tendency to get reflected into a particular human resource. यानी हम एक सेट ऑफ स्किल को हायर करते हैं जो किसी व्यक्ति के हुनर में हो सकता है, एग्जिस्ट कर रहा हो, या हो सकता है कि एग्जिस्ट कर जाएगा, थोड़ा सा उसको ट्रेन करेंगे तो हम सेट ऑफ स्किल को हायर करते हैं. इसलिए सेट ऑफ स्किल की डेटा बेसिंग अगर है तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? अवेलेबल डेटा, अवेलेबल पार्टिसिपेंट्स में. और अगर पहचान हो जाती है, वो सेट ऑफ स्किल का पर्सन या पार्टिसिपेंट कहता है, अपने कुछ टर्म कंडीशंस रखता है, तो फिर उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे? तो अगर ऐसे देखेंगे तो इसीलिए एक रिक्रूटमेंट का पूरा पूरा सेल होता है, वो 24/7 एक्टिव रहता है. वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी बोर्डिंग करता रहता है, वहां पे थॉट प्रोसेस देखता रहता है, और उसमें ये भी देखता है कि सिर्फ मैन पावर में सेट ऑफ स्किल की क्वालिटी मायने नहीं रखती, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो भी मायने रखता है कि किस कैपेसिटी में ऑर्गेनाइजेशन है, कि कितना हाउ मच पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वुड इन्वेस्ट इनटू फॉर द पर्पज ऑफ हायरिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेट ऑफ स्किल्स. तो मैन पावर की पहचान करना और उसको एज पर द टर्म म्यूचुअली एग्रीड टर्म एंड कंडीशन उनको इंडक्ट करना, उनसे वो सेट ऑफ स्किल्स का डिलीवरी लेना या प्रोसेस में रिफ्लेक्ट करना, इन सब के लिए कंटिन्यूअस, वहीं अगेन हम कहेंगे कि स्मार्ट एंड कंसिस्टेंसी इन प्रोसेस का मॉडल अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हो जाएगा. तो धीरे धीरे करके हम लोग अपनी खोज और खोज दोनों को जारी रखेंगे, और आई एम कॉन्फिडेंट इनफ दैट वी विल गेट इट, बिकॉज वी आर इन द जुडिशल कैपिटल ऑफ द स्टेट. तो हमें वो मैन पावर मिल जाएगा, हम होप करते हैं. और हम डेटा फीडिंग रिमोटली भी एक्सेस करते हैं, प्लेटफॉर्म ड्रिवन भी है, और आउटपुट भी हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं. तो इसलिए हम लोग को सहूलियत है उन लोग की तुलना में जिनके पास ये सब चीजें नहीं है. So we are far better than our competitor, and definitely will prove it in the time. Whether I have answered the questions raised by our chief operating officer? Yes, yes, of course. Okay. Next question was raised by HRC.
about the span of control. Actually, so far I get the gist of the questions. That was about timeline. Ki, first was accountability and what we say. Actually, there was three element of the questions: timeline, accountability, and AI adoption. And fourth was about the integration of the manpower. इन नटसेल अगर सारे पॉइंट्स को हम समराइज करें तो उसमें ये था कि हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है कैसे उसको हम वाइड करें मगर वाइड करने के साथ साथ कैसे हम उसमें कंसिस्टेंसी इंश्योर करें ताकि आर्बिट्रेरीनेस और रैंडमनेस न रहे। तो जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर अ पर्सन प्लेइंग ए मल्टीपल रोल मीन्स की दैट पर्टिकुलर पर्सन हैविंग अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो ऐसे स्पैन ऑफ कंट्रोल को हम कैसे ऑटोमेट करेंगे ताकि एक कंसिस्टेंसी इन द आउटकम हो, कंसिस्टेंसी इन द प्रोसेस हो और कंसिस्टेंसी इन द आउटकम हो। तो इसके लिए ही आदमी अपना मैनुअल बिल्डअप करता है, अपना क्यूएमएस जिसको हम लोग बोलते हैं, अपना एसओपी बिल्डअप करता है ताकि जो उसकी जो ट्रैकिंग है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पे वो अपने प्रोसेस को, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग एक लॉ में एक इंटरप्रिटेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो, डॉक्ट्रिन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। ये एक तरीके का डॉक्ट्रिन है। एक्चुअली डॉक्ट्रिन हमारे इंटरप्रिटेशन में हमें ऐड करती है। कैसे? जब हम कभी जैसे आर्टिकल 170 सेक्शन 173 फर्दर री इन्वेस्टिगेशन के मैटर पे कहा जाता है कि फलाना फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, मगर उसमें भी कहा था कर सकता है, मगर पुलिस वालों ने कस्टम डेवलप किया है कि बिना कोर्ट की परमिशन के वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो का जो प्रिंसिपल है वो हमारे उस प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन को हेल्प करता है कि वहां पे ऐसा मनाही नहीं है, मगर प्रैक्टिस में चूंकि ये पूछने के आदी है इसलिए आपने पूछा क्यों नहीं, बिना पूछे आपने इन्वेस्टिगेशन फर्दर किया तो फिर वो सेटिसाइड हो जाएगा 482 में। ये रिसेंट जजमेंट है, हमने बोला। तो ये भी एक मायने रखता है हमारे इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल में कि जब चीजें डॉक्यूमेंट होती है, एसओपी होता है, क्यूएमएस होता है और ट्रैकिंग होती है, तो उसके बाद इस तरीके के हमारे जो कस्टमरी रूल्स है वो हमें रेगुलेट करते हैं कि नहीं 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 ये थोड़ा सही नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। तो इसी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के जरिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि कैसे हम अकाउंटेबिलिटी में कैसे हम वो डेमोक्रेटाइज करें पावर ऑफ ये जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का। दूसरा है कि उसको टाइमलाइन के साथ हम कैसे अलाइन करें, और तीसरा है कि एआई एडॉप्शन इंटीग्रेशन जिस भी लेवल पे चल रहा है अवर कंप्यूटर्स या लीगल इंडस्ट्रीज में, हम आगे हैं पीछे हैं और हमारे मैन पावर के अपने कुछ इश्यूज हैं। डेफिनेटली ये सब होंगे। हम टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, मगर ध्यान दें कि अगर ऐसे सिटी में रह के भी इस तरीके का इनोवेटिव स्टेप्स अगर लेते हैं तो हमारी जो परचेजिंग पावर होगी टीयर 1 से बेहतर होगी और हमारे जो फिक्स्ड कास्ट है वो बेहतर होगा, जिससे हमारी जो बॉटम इफेक्ट है कैश फ्लो का वो बेटर आएगा। तो डोंट वरी, as per the milestones which I have shared here in above during the early stage of our presentations, we have gone through number of the achievements or milestone which your firm has adapted into. So in the light of those confidence building measures, I am in positions to say boldly that definitely we will get it sort out in time if there is any. Okay. Am I have I answered your question, our HRC? Yes, sir. Exactly. Okay. Thank you. The next question was asked about from the CTO, Chief Technology Officers, about what is the difference between nature and scope. As per my content, which I have just coined or developed, yes, actually your question is based on the point of source of the content which I have shared here in above. तो हम किस सोर्स के बेसिस पे नेचर और स्कोप की बात किए थे उसको अगर बात करेंगे तो अगेन आई विल शेयर द सोर्स विथ यू इन द रिपोर्ट सेक्शन। बट हमने जो बोला था नेचर और स्कोप, तो नेचर में से हमने कहा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब सेट ऑफ एक्टिविटीज आपस में
जब एक कंसिस्टेंसी एक प्रोसेस को पाने का प्रयास करें तो हम कहते हैं ना कि वो कंटिन्यूअस उसमें एक वो सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, तो उस सिस्टम में कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और वो फ्यूचर ओरिएंटेड है अगर है, और हमने कहा था एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंगल, यानी नेचर ये वैसे ही है कि नेचर और स्कोप को एक बड़ी मजेदार क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल है, इसको हम किसी एक क्यूसी सेशन रखेंगे जिसमें फिलोसॉफिकल हम वर्ड को कॉन्सेप्ट को रखेंगे, 1 घंटे का रहेगा, उसमें नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, एम, रेजीम, इन सबको एक साथ रखेंगे, और वो हमारे जो अभी हम लोग एक प्लेलिस्ट जनरेट करेंगे जिसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशन करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक का। अभी हम लोग लर्नर्स कॉर्नर पे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हमारी कुछ टीम उस पर लगी हुई है, धीरे धीरे चीजें हो जाएगी, तो हम लोग जब नेक्स्ट प्लेलिस्ट जनरेट करेंगे तो ऐसे फिलोसॉफिकल कॉर्नर रहेंगे जिसमें सेटेनाइट्स वे ऑफ थिंकिंग को हम लोग उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन अगेन हम रख ले रहे हैं, वहां पे हम बेटर वे में डिस्कस कर पाएंगे, बट यहाँ पे नेचर था, जैसे इंसान पे सोचिए कि हमारा नेचर क्या है और हमारा काम करने का दायरा क्या है, बस ये कॉन्सेप्ट रखिएगा, फॉर्म में काम आ जाएगा कि हमारी सोच है कि हम ऐसे ऐसे नेचर के हैं, ऐसे ऐसे हमारा आप स्कोप क्या है, स्कोप तो भाई एडवोकेट है, हम क्या यहाँ से ये कर सकते हैं। तो नेचर हमारे स्कोप को एक तरीके से स्ट्रेंथ देता है, और स्कोप हमारे नेचर को एक तरीके से नयापन देता है कि आप अपने को और इम्प्रूव कर सको। Am I in positions? Have you get the answer, our CTO? Yes, sir. Completely. Okay. With all this, I would request to our chief operating officers kindly conclude the sessions. आप सभी का इस मीटिंग में आने के लिए स्वागत, धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमने 1 घंटे का टाइम निकाला, काफ़ी पेशेंस रखा, और हमारे मतलब अपने फॉर्म के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, या यूँ कहे कि ये थोड़ा अवेयर किया जा रहा है, जैसे कि आने वाले समय में कुछ और लोगों को भी इस पे इंडक्ट किया जाएगा। धीरे धीरे हम हमारे पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं, और धन्यवाद दूंगा यहाँ पे स्पेशली नरेंद्र जी को, जिन्होंने अपना टाइम दिया यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बने रहेंगे हमारे साथ, और ऐसे ही, और इनको भी हम एक उस पे मैन पावर के रूप में देखना चाह रहे हैं अपने फॉर्म के लिए। तो इसी सबके साथ में एक बार सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और इसी के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे सब लोग एक साथ अपने स्क्रीन पे आ जाए, कि उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक सीटीओ ले लेंगे इसका, ताकि हम लोग को रिपोर्टिंग में काम आ जाएगा, सब्जेक्ट टू द प्राइवेसी कंसर्न। तो एक इसका स्क्रीनशॉट अपना सीटीओ वीडियो को ऑन कर लीजिए। हाँ, सब्जेक्ट टू द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द प्राइवेसी। ओके, तो अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। विथ ऑल दिस, गुड आफ्टरनून। ओके, ठीक है, आप सभी को नमस्कार। मिस्टर नवीन, ओके।